हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया में अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स हैं, वेदर्स हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इसमें। सो यहाँ पर एक किसी ने कुछ बोला है, उसकी सेइंग यहाँ दी गई है कि क्या बोला था। मे द रेन्स भी टाइमली, कि रेन जो है टाइम से आए। मे द अर्थ बी लश विद वेजिटेशन, और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अर्थ पे। मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्माइल, मे गुड पीपल बी फेयरलेस, और ये कंट्री हमेशा जो है, ये जो भी चीज़ें आती है, आपदा वगैरह आती है, उनसे फ्री रहे, और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो फियरलेस रहे। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हमें इस चैप्टर से पता चलेंगे, उनके आंसर्स। वट मेक्स इंडियाज़ क्लाइमेट सो डाइवर्स, किसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट इतना डाइवर्स है, यानी कि यहाँ पर आपको हर टाइप का वेदर देखने को मिलता है। वट आर द मानसून्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, what is the effect of climate on economy, culture and society, how can understanding the climate help us to prepare for natural disasters, and what is the climate change and what are its consequences। तो ये सब हमें इसमें पता चलेगा। So what makes India's climate so diverse, तो क्यों जो इंडिया क्लाइमेट इतना डाइवर्स है। So India's climate is diverse due to various geographical and environmental factors. Latitude, regions closer to the equator are warmer, while northern regions like Srinagar are cooler. Altitude, higher altitude like in hill stations such as Shimla and Ooty are cooler due to lower air pressure and density. Proximity to the sea, coastal areas like Mumbai have milder temperature due to the moderating effect of the sea. Winds from deserts or sea affects humidity and temperature. For example, desert winds cause heat waves while monsoon winds bring rainfall. Topography, mountains like the Himalayas blow cold winds, desert like Thar receive little rainfall, and valleys or forests may have microclimates. What are monsoons? So monsoon are seasonal winds that bring rainfalls and are central to life in India. The term comes from the Arabic word moism, meaning season. How they are formed? So summer season, साउथ वेस्ट मानसून होता है। इन समर लैंड heats up more quickly than the ocean and create a low pressure area. Moist wind from the ocean blow towards the land and bringing rain. Winter monsoon, northeast monsoon होता है। In winter the land cools down faster and form a high pressure area. Wind blow from land to sea. They bring dry weather and but also some rainfall to eastern and southern India. What is the effect of climate on economy, culture and society? So economy पर क्या होगा? Monsoon failure leads to poor agriculture output, water shortage, food prices inflation and migration of laborers. Culture, festival like Pongal, Onam, Baisakhi and Chhat Puja are linked to the seasons and agriculture cycles. Society, seasons changes influences food habit, clothing and local customs. Climate are also impact infrastructure planning and health conditions. How can understanding the climate help us to prepare for natural disaster? So क्या कैसे हेल्प करेगा? प्रेडिक्ट कर सकते हैं साइक्लोन्स को, फ्लड एंड ड्राइट्स, अलाउइंग अर्ली वार्निंग एंड टाइमली इक्विकेशन. Develop disaster response system like the National Disaster Response Force NDRF. Design infrastructure and city planning to prevent flood and landslides. Encourage community preparedness and sustainable practices to reduce impact. What is climate change? So climate change refers to significant long-term changes in temperature, rainfall and weather patterns. What are its consequences? So causes क्या हो सकते हैं? सबसे पहले mainly due to human activities such as burning fossil fuel, deforestation and pollution. Consequences होंगे rising temperature and shorter winters होंगे, यानी कि विंटर कम होंगी. डिस्ट्रप्शन होगा एग्रीकल्चर साइकिल का और वाटर अवेलेबिलिटी का. मोर फ्रीक्वेंट एंड सेवरल नेचुरल डिजास्टर जैसे कि साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर्स और फ्लड ज़्यादा होगा. इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर, हेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम सब पर होगा. स्टार्ट करते हैं वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट्स. सो क्लाइमेट इज़ अ वर्ड पीपल यूज़ इन एवरीडे कन्वर्सेशन. तो क्लाइमेट ऐसा वर्ड है जो हर कोई यूज़ कर रहा होता है अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में, बातचीत में भी, बट क्वाइट ओपन वट दे रियली मीन्स इज़. लेकिन वो क्लाइमेट का नाम लेते हैं, लेकिन उनके क्लाइमेट का मतलब होता है वेदर एंड नॉट क्लाइमेट. वो क्लाइमेट वेदर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि क्लाइमेट के लिए.
दोनों में डिफरेंस क्या है? सो वेदर इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर्स और डे। सो वेदर होता है जो भी चीज़ हम हर घंटे जो है देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, या फिर एक दिन में जो है उस टाइम पे किस तरह का मौसम रहा वो। इट माइट बी रेनिंग और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन, अ लॉट ऑफ विंड एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है कि आज पूरा दिन बारिश हुई तो आज का वेदर रेनी था, ठीक है, अगर सन था तो आज का जो है हॉट था वेदर थोड़ा सा, तो इस तरह से। द वेदर कीप्स चेंजिंग, वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज अ पैटर्न ऑफ वेदर एन एरिया और अ रीजन एक्सपीरियंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जबकि क्लाइमेट क्या होता है? पैटर्न होता है वेदर्स का, किसी एरिया में किसी जगह में, ठीक है, वहाँ पे लगातार किस तरह का वेदर रहा है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे आप कहीं जाते तो बोलेंगे कि यहाँ पर मोस्टली बारिश होती रहती है, यहाँ जो है क्लाइमेट जो है बारिश का है। तो इस तरह से मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के एक्सपीरियंस से उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है। सेवरल डेकेड्स एट लीस्ट, बहुत सारे मतलब डेकेड्स 10 ईयर के लिए होता है, तो कई सालों तक इस पैटर्न को नोटिस किया जाता है। दिस पैटर्न वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये पैटर्न जो है रीजन टू रीजन यानी कि अलग अलग जगहों पे डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। बिफोर वी कम टू वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, लेट अस ब्रीफली स्टॉप टू इंट्रोड्यूस सीजन्स। अब हम क्लाइमेट पे, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट पे आते हैं, उससे पहले हम सीजन्स को भी समझ लेते हैं। सो सीजन्स ओकर्स एज द अर्थ रिवोल्व अराउंड द सन। सीजन कैसे बनते हैं? अर्थ जब सन के अराउंड रिवोल्व कर रही होती है तो उसके अकॉर्डिंग सीजन्स फॉर्म होते हैं, बनते हैं। ईच सीजन लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड रिकर्स एवरी ईयर। तो हर एक सीजन कुछ महीने तक रहता है, फिर उसके बाद अगले साल फिर से आता है, तो इस तरह ये बार बार रिपीट होता रहता है। एज वी नो देर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर, और हमें पता है कि ईयर में बहुत सारे सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर, डैट ओकर्स इन अ साइकिल, और वो हमेशा एक साइकिल में चलते हैं। आर सीजन रिलेटेड टू द वेदर और टू द क्लाइमेट? तो क्या सीजन जो है वेदर या क्लाइमेट से रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर है येस, और दोनों से रिलेटेड हैं। द वेदर चेंजेस विद द सीजन, तो जैसे ही अलग सीजन आता है वेदर उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। डैट इज इट कैन बी ड्राई एंड हॉट इन समर मंथ्स और ह्यूमिड एंड रेनी ड्यूरिंग द मानसून्स। सो वेदर क्या होगा? ड्राई या हॉट रहता है जब समर टाइम होता है, और रेनी सीजन में क्या होता है? मानसून में रेनी और ह्यूमिड रहता है। फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन इन अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट, और ये जो सीजन है ये डिपेंड करता है कि उस जगह का, उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है। देर आर 4 मेन सीजन अक्रॉस मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 जो है मेन सीजन्स होते हैं, कौन कौन से? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। हाउएवर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर, लेकिन इंडिया में क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है बारिश आती है, सो इसीलिए उस सीज़न को नाम दिया गया रेनी सीजन और मॉनसून अलोंग विद द अदर 4। ये तो है ही है, इसके साथ में रेनी सीजन भी है। नाउ ट्रेडिशनली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन और ऋतुज। अब कौन कौन से 6 सीजन है यहाँ पर? वसंत, स्प्रिंग होता है, ग्रीष्म, समर है, वर्षा, रेनी सीजन, शरद, ऑटम ब्रेक, हेमंत, प्री विंटर और शिशिर यानी कि विंटर। तो ये 6 जो हैं इंडिया में सीजन्स माने जाते हैं। स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विद दीज 6 ऋतुज सच एज वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। और जब ये वेदर्स आते हैं या ये सीजन्स आते हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल भी हैं जो इनके लिए मनाए जाते हैं। जैसे कि वसंत होता है तो वसंत पंचमी आती है, या फिर शरद पूर्णिमा। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, तो अगर हम अपने आसपास का जो एरिया है उसे देखते हैं, वी विल नोटिस दैट ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ आर इन रिदम विद द ऋतुज और सीजन। तो अगर हम ह्यूमन को या प्लांट का या एनिमल की लाइफ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ भी सीजन्स के अकॉर्डिंग, ऋतुज के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उससे कि रिदम में चलती हैं। द क्रॉप्स वी ग्रो, द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर एंड सो ऑन चेंज विद द सीज़न। तो जो हम फसल उगाते हैं या जो खाना हम खाते हैं या जो कपड़े हम पहनते हैं वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सीज़न, कि अगर गर्मी है तो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, ठंडी है तो वूलन क्लोथ्स हम पहनते हैं। सो सीज़न के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन, और ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। सम ट्रीज एंड शब्स ब्लूम विद द वन सेट ऑफ वसंत और स्प्रिंग, और कुछ ट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वसंत आता है उस टाइम पे उनमें जो है मतलब फूल वगैरह या वो ब्लूम करने लगते हैं, फिर से सब जगह मतलब हरियाली आ जाती है। इन सम प्लेसेस दे शेड देयर लीव्स और चेंज देयर कलर एज शरद और ओटम अप्रोचेस। और क्या होता है जब ओटम आता है या शरद ऋतु आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो भी
लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अपने लीव्स वगैरह क्या कर देते हैं, छेड़ देते हैं, गिरा देते हैं. एंड सम एनिमल डेवलप थिक फर इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. और कुछ एनिमल होते हैं जिनके फर जो है बहुत थिक हो जाते हैं जैसे जैसे विंटर आने लगता है. नाउ विच आर योर फेवरेट सीज़न. आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है, उस पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करना है. जैसे कि अमंग ऑल द सीजन माई फेवरेट इज़ विंटर. विंटर इज़ माई फेवरेट सीजन. इट्स यूजली लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फेब्रवरी इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. I like winter because the weather is cool and pleasant. Unlike the hot summer, I can play outside without sweating too much. I also enjoy wearing woolen clothes, colorful sweaters and mufflers. Winter is also the season of festival like Christmas, Lohri and Makar Sankranti. These festivals bring joy, sweets and family gatherings, and the food in winter is delicious. We get to eat peanuts, gajak, hot soups and green vegetable like mustard leaves. और सरसों का साग वगैरह ये सब होते हैं जिसे सरसों का साग भी बोलते हैं. इन अर्ली मॉर्निंग द फॉग मेक एवरीथिंग लुक मैजिकल. द नाइट आर लॉन्गर सो आई स्लीप वेल. आई लव सिटिंग इन द सन ड्यूरिंग द डे एंड ड्रिंकिंग हॉट कोको. एंड दिस सीजन मेक मी फील फ्रेश, एक्टिव एंड cheerful. दैट्स वाई विंटर इज़ माई फेवरेट. तो यहाँ विंटर के बारे में लिखा है. आपको कौन सा सीज़न फेवरेट है वो आप बताएंगे. Now you have to discuss in the group of 3 or 4 and find out whether there are specific events connected to the season in your region. उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सॉन्ग, फेस्ट या कोई भी स्पेसिफिक टाइप का फूड जो होता है डिफरेंट सीजन में वो बताना है. जैसे कि स्प्रिंग इवेंट कौन से होंगे, बसंत पंचमी हो जाता है. सॉन्ग सरस्वती वंदना, येलो स्वीट्स वगैरह पहनते हैं. प्रैक्टिस इज वेयरिंग येलो क्लब्स और फ्लाइंग काइट. समर में मैंगो फेस्टिवल हो सकता है. मैंगो बेस्ड डिश लाइक आम रस बनाते हैं और कार्ड्स और ड्रिंकिंग, ये सब फेस्टिवल होते हैं. ड्रिंकिंग आम पन्ना वगैरह. ठीक है. मॉनसून में तीज और रक्षाबंधन आता है. घेवर और जलेबी होती है. स्विंगिंग ऑन ट्रीज, सेलिब्रेटिंग विद फैमिलीज. ऑटम शरद पूर्णिमा, खीर, केप्ट अंडर मून लाइट, मून गेजिंग एंड प्रेयर फॉर हेल्थ. विंटर में लोहड़ी और मकर संक्रांति आता है. रेवड़ी, पॉपकॉर्न, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं. बोन फायर, काइट फ्लाइंग, सेसमे स्वीट्स वगैरह बनाई जाती हैं. नाउ डू यू नो विच ट्री इन योर एरिया चेंज कलर बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर. तो कौन सा है जो अपना कलर चेंज करता है. आर देयर ट्रीज डेट शेड देयर लीव्स अराउंड द टाइम. या फिर कोई ट्रीज हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं. वाई डू यू थिंक दिस हैपन, ये क्यों होता है. फाइंड आउट और डॉक्यूमेंट करना उनका नाम लोकली क्या है. सो येस, इन आवर एरिया सम ट्रीज स्टार्ट टू चेंज कलर एंड शेड लीव्स before the onset of the winter. This usually happen in late October or November. जैसे पीपल है. Fixus ringosia, leaves turn yellow and drop. नीम, ये इसका साइंटिफिक नेम है. शेड लीव्स ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स. उसके बाद आमलतस या गुलदाउदी होता है. लीव्स जो है गिर जाते हैं और फ्लावर जो है स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं फिर से. बरगद का है. सम ब्रांचेस ड्राई, लीव्स फॉल. अब ये होता क्यों है. सो ट्रीज शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ. क्योंकि ठंड आती है तो उन्हें अपनी एनर्जी और पानी सेव करके रखना होता है. व्हेन वाटर इज लेस अवेलेबल एंड सनलाइट इज वीकर, दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड deciduous behavior. It helps trees survive and grow better when spring return. Usually the climate remains stable over long period of time. So climate जो है mostly लंबे period के लिए same रहता है. However, scientists have been recording changes in the climates of the world in the recent decades. लेकिन अभी जो है साइंटिस्ट जो ये क्लाइमेट है हर एक जगह की, इनमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं नोट कर रहे हैं. Studies show that many of these changes have been caused by human actions. अब जो स्टडी वो कर रही हैं या जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, जो नोटिस कर रहे हैं, उसमें उन्हें पता चल रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में ये मोस्टली ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रही हैं. यानी कि इंसान जो जिस तरह का एक्शंस कर रहे हैं या जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है उसकी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं. लेट अस recapitulate. Weather is what we experience from day to day, windy, rainy, hot and dry, etc. ठीक है. तो वेदर क्या है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे वो. सीजन क्या है, रीकर होता है एवरी ईयर एंड द वेदर ऑफ अ प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन. तो सीजन जो है एवरी ईयर दोबारा आते रहते हैं और वेदर जो है हर प्लेस का डिपेंड करता है उसके सीजन पे. क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म पैटर्न. क्लाइमेट क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है किसी पर्टिकुलर रीजन का. देर आर मैनी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में जो है बहुत अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स हैं. वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप फाउंड इन द इंडिया. सो अब हम सर्वे करेंगे या देखेंगे कि जो इंडिया में क्लाइमेट पाया जाता है उसके बारे में. नाउ द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया.
वी हैव ऑफन सीन हाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हमने देखा कि इंडिया में जो है किस तरह से अलग अलग तरह के लैंड मिलते हैं, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ इक्वली ट्रू फॉर इट्स क्लाइमेट, ये क्लाइमेट के लिए भी ट्रू है। सो इन द नॉर्थ द हिमालयन माउंटेन्स हैव एन alpine climate with cold snowy winter and cool summer. The word alpine comes from the Alps, a mountain range of Europe. सो नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन है जहाँ पर क्लाइमेट ठंडा रहता है, यानी कि बहुत स्नोई होता है। विंटर के टाइम पे तो बर्फ़ वगैरह ज़्यादा हो जाती है, बहुत ठंडा होता है, जबकि जब समर है उस टाइम पे भी वहाँ का जो है वेदर ठंडा ही रहता है। और ये जो वर्ड है एल्पाइन, ये कहाँ से लिया गया है, एल्प से, जो एक माउंटेन रेंज है यूरोप में। That is probably where you will see the thickest clothing in India. और यही वो जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा थिक कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। Now, lower in the Himalayas and in many hilly areas of India, the climate is often said to be temperate. अब जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं हिली एरिया जो इंडिया के, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेट होता है, मतलब क्लाइमेट थोड़ा ठीक होता है। एज द विंटर आर मॉडरेटली कोल्ड एंड द समर नॉट टू हॉट। अब जो विंटर जो है हिमालय में क्या था, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, स्नोई होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा हिली एरिया में नीचे की तरफ आते हैं तो ठीक ठीक होती है, मतलब ज़्यादा ठंड वहाँ पर नहीं होती है, और जो गर्मियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, मॉडरेट होता है। डैट इज़ वेयर वी find many hill station much frequented by people seeking relief from the heat in the plains below. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब समर होता है या समर वेकेशन वगैरह देखोगे तो मोस्टली लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं उस टाइम पे, ताकि यहाँ पे जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे जितनी गर्मी होती है उससे बचने के लिए। Now, in the northern plain, the climate is subtropical with every hot summer and cold winter. This is where most of the India's wheat is grown. नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, जो क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, जिसमें समर भी बहुत गर्म होती है और विंटर्स में भी ठंड होती है, और यहीं पर इंडिया की सबसे ज़्यादा वीट यानी कि गेहूँ ग्रो की जाती है। इन द वेस्ट द थार डेजर्ट has an arid climate featuring extremely hot days and cold nights and very little rainfall. जबकि आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको थार डेजर्ट मिलता है, जहाँ का जो है क्लाइमेट बहुत ही अलग है। सुबह के टाइम दिन के टाइम पे बहुत गर्म होता है, रात में बिल्कुल ठंडा हो जाता है और बारिश बहुत कम होती है। पीपल देयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर। तो यहाँ पर लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से अलग अलग टेक्निक जो है डेवलप कर रखी हैं पानी को सेव करने की और कलेक्ट करने की। नाउ द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स क्रिएटिंग ए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट विच इज़ फेवरेबल टू द ग्रोइंग ऑफ राइस एंड स्पाइसेस। और जो वेस्टर्न कोस्टल यानी कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो भी जगह हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून मंथ्स में, और वो एरिया मोस्टली वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट क्लाइमेट है, और वेट की वजह से वहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर राइस और स्पाइसेस ग्रो करते हैं। द सेंट्रल डेकन प्लेटू हैज़ अ सेमी एरिड क्लाइमेट विद हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जो सेंट्रल डेकन प्लेटू है उसमें क्या है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, यानी कि ज़्यादा जो है मतलब गर्मी भी वहाँ पर होती है, विंटर्स ठीक ठीक होती हैं और रेनफॉल भी ठीक ठीक हो जाती है रेनी सीजन में। ईस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न पेनिनसुला एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अ माइल्ड विंटर एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड कंट्रोल्ड बाय द मॉनसून विंड्स। और ईस्टर्न इंडिया और जो सदर्न पेनिनसुला है उसमें क्या होता है, क्लाइमेट में विंटर थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी ठीक ठीक सी होती है, और वेट और ड्राई पीरियड यहाँ पर मॉनसून के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यू विल अंडरस्टैंड लेटर द मीनिंग ऑफ टर्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो इसके बारे में अब हमें आगे पता चलेगा, विच आर रिलेटेड टू टू स्पेशल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कॉल्ड द ट्रॉपिक्स। नाउ द फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट। अब ये इससे कैसे रिलेटेड है, सो वट क्रिएट दोज डिफरेंट क्लाइमेट, कौन इनको अलग अलग क्लाइमेट बनाता है। देर आर मैनी फैक्टर एट वर्क, तो बहुत सारे जो हैं फैक्टर होते हैं, सम आर जनरल वंस ऑन द स्केल ऑफ द प्लैनेट, तो प्लैनेट के स्केल पर है, वाइल अदर आर रीजनल और इवन लोकल, तो अलग अलग तरीके होते हैं। लेट्स एग्जामिन अ फ्यू। तो यहाँ पर कुछ है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है, लेट अस रिमेंबर वी स्टडीज अबाउट लैटिट्यूड इन ग्रेड 6। डू यू रिमेंबर दैट लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, जो इक्वेटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम इट।
जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो हम जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टेंस को मेज़र कर रहे होते हैं, आइदर नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। वेल द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर इज़ एक्सट्रीमली हॉट। सो ये जैसे इक्वेटर हो गया तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट होता है, गर्म होता है। और जैसे जैसे आप इससे ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो वो जो है ठंडा होता रहता है आपका क्लाइमेट और वेदर, दोनों चीज़ें, टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये क्यों होता है? प्लेसेस नियर द इक्वेटर, अब जो प्लेसेस हैं जो नियर हैं इक्वेटर के पास में हैं, डेट इज़ एट लो लैटिट्यूड, वो बिल्कुल लो लैटिट्यूड पे हैं, आर वार्मर, वो गर्म होती हैं, वाइल दोज नियर द पोल्स, और ये आपके पोल होते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, जो बिल्कुल पोल के पास में है, आर कोल्डर, वो ठंडी होती हैं। दिस हैपन ड्यू टू द एंगल एट विच द सन रेज हिट अ पर्टिकुलर एरिया। अब ये क्यों होता है, ये डिपेंड करता है कि सन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है सन रेज या सनलाइट कितनी आ रही है। एट द इक्वेटर द रेज आर नियरली परपेंडिकुलर and so all their energy is focused on a small area of the earth surface। अब क्या होता है, जो सन है, सन की डायरेक्ट लाइट जो इस तरह से लगता है कि जैसे पूरी की पूरी वहाँ इक्वेटर पे, तो थोड़े से एरिया में ज़्यादा लाइट होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है। इन द पोलर रीजन, अब जो पोलर रीजन है वो यहाँ पर है और बिल्कुल ऊपर है, वहाँ पर क्या होता है, द रेज आर इंक्लाइंड होती है, थोड़ी टेढ़ी होती हैं, ओब्लिक होती हैं, एंड द एनर्जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज सरफेस, और पूरी एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो पहले यहाँ सीधी आ रही है, अब जैसे जैसे वो यहाँ पर जाएगी तो वो एनर्जी सन की क्या होती रहती है, डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, तो बड़ा एरिया हो जाता है उनके लिए। मोर ओवर दे हैव टू पास थ्रू मोर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, उन्हें जो है ज़्यादा अर्थ के एटमोसफेयर को भी पास करना होता है। एज द डायग्राम शोज विच फर्दर डिसिपेट्स देयर एनर्जी, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा अभी, जैसे मैंने बताया, एज अ रिजल्ट द पोलर रीजन्स रिसीव लेस हीट देन द इक्विलेटरल जोन्स, जिसकी वजह से जो पोलर रीजन है वहाँ पे हीट कम जाती है अगर आप कंपेयर करेंगे इक्वेटर वाले रीजन से। वी कैन सी दिस इज़ इन इंडिया टू, इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कन्याकुमारी एंड द निकोबार आइलैंड बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर। अब जो कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड है वो क्या है, इक्वेटर के पास में है और गर्म होते हैं, हॉट होते हैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। वेयर एज प्लेसेज इन द नॉर्थ, जबकि जो प्लेसेस नॉर्थ में हैं सच एज श्रीनगर आर मच कूलर, जैसे कि श्रीनगर वगैरह वो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। नाउ लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा, अभी आता है एल्टीट्यूड। वी मेंशन हिल स्टेशन अबव, ऊपर हमने हिल स्टेशन के बारे में बात किया, विच आर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर, जो क्या है पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कूलर क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा होता है, क्लाइमेट ठंडा है। इंडिया हैज़ मैनी इंक्लूडिंग मुन्नार, थेली, उदामबागदाम या जिसे ऊटी भी बोलते हैं, मेदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे जो हैं हिल स्टेशन हैं। वी नो दे आर लोकेटेड एट ए हायर एल्टीट्यूड, हमें पता है कि ये सारे क्या हैं, हायर एल्टीट्यूड पे लोकेटेड हैं। देन द प्लेन्स बिलो, क्योंकि प्लेन नीचे होते हैं और जितना आप ऊपर की तरफ जाते हैं उतना वहाँ पे आपको ठंड ज़्यादा होती है। बट हाउ डज दैट एक्सप्लेन देयर कूलर टेम्परेचर, तो इससे ये क्या हो गया कि अगर वो ऊपर हैं तो ठंडे होंगी, इसका क्या मतलब हुआ। सो यू विल लेटर लर्न द फुल आंसर इन योर साइंस क्लासेस, तो ये आपको अपनी साइंस क्लासेस में पता चलेगा। मोस्टली क्या होता है, जो नॉर्मल एरिया होते हैं, प्लेन एरिया, वो गर्म होते हैं, और जैसे जैसे आप लैटिट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड पे जितना ऊपर जाएंगे वहीं पर वहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। सो टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर नाउ, अभी बिल्कुल सिंपल रखने के लिए, जैसे द टेम्परेचर डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, आपको ये कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता रहता है। ये कुछ जगहें हैं, दार्जिलिंग, ऊटी, मुन्नार और शिमला वगैरह। नाउ बिकॉज, अब क्यों बढ़ता है, द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड देयरफॉर द एयर डेंसिटी डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। क्या होता है, एक तो एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है और जो एयर डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप ऊपर जाते तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहता है, एज वी सो इन द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर। एंड एज द एयर गेट्स लेस डेंस इट गेट कूलर, और अगर वो लेस डेंस होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ठंडी हो जाती है। द सन हीट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अब सन भी क्या करता है, हीट करता है सर्फेस ऑफ अर्थ के सर्फेस को, एंड सो द फर्दर अवे फ्रॉम द सर्फेस द लेस हॉट द एयर विल बी, द हिमालयन आर सो हाई।
अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो उतनी ही वहाँ पर क्या होगा, एयर उतनी ही कम ठंडी गर्म होगी। हिमालय क्या होता है, बहुत ऊपर है, डेट में पीक्स मेंटेन अ टेम्परेचर बिलो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट कीपिंग देयर कवर्ड इन स्नो। अब हिमालयन पे क्या होता है, वो बहुत ऊंचे, इतने ऊंचे हैं कि उनकी माउंटेन में जो टेम्परेचर होता है वो इतना नीचे होता है कि वाटर फ्रीजिंग लेवल पे होता है, कि पानी जम जाता है। इसी वजह से वहाँ पर उनकी जो मतलब वो एरिया जो है पूरा स्नो से कवर रहता है। नेक्स्ट, Ooty and Coimbatore are almost at the same altitude. The range of summer temperature in Ooty is 10 to 25 degrees Celsius, while that is in Coimbatore 25 to 38 degrees Celsius. Why do you think there is such a difference in temperature? So, Ooty and Coimbatore are located at almost the same altitude. Meantime, they receive similar amount of sunlight. However, the big difference in their summer temperature is due to altitude. और वो क्या है, Ooty. Ooty is a hill station located at the high altitude in the Nilgiri Hills. The temperature decreases as you go higher above sea level because of the air become thinner and cooler. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर ठंडी होती रहती है. This result in a cooler climate with summer temperature ranging between 10 degree to 25 degrees Celsius. Coimbatore is located in the plain at a much lower altitude. The air is denser and can hold more heat, so it gets hotter in summer with temperature between 25 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. So the difference in altitude is the main reason why Ooty is cooler than Coimbatore. Now, proximity to the sea. नाउ टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया डू नॉट वेरी मच. अब जो कोस्टल एरिया होते हैं, यानी कि समुद्र के सी के आसपास के, ओशन के आसपास के जो एरिया हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, अलग अलग नहीं होता. द समर आर नॉट टू हॉट एंड द विंटर आर नॉट टू कोल्ड. समर में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और विंटर में ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है. डैट इज़ बिकॉज, अब ये क्यों होता है, द सी एक्ट एज अ मेटाफर फॉर द टेम्परेचर, क्योंकि सी जो है एज अ मेटाफर जो है एक्ट करता है वहाँ पर टेम्परेचर के लिए. अब यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये जो है सम अप करता है फिनोमेनन, एंड योर साइंस टेक्स्ट बुक्स एक्सप्लेन दिस फर्दर वाइल डिस्कसिंग द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन कोस्टल रीजन्स. तो जब आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक में इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा इसको. अब जैसे क्या होता है, समर के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर जो प्लेन है यानी कि जो जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं वो क्या होती है, गर्म होती है, और जो सी के अंदर जो पानी है वो ठंडा होता है. तो हवा यहाँ से इधर जाती है सी के अंदर और सी से ठंडी हवाएं बाहर की तरफ जाती हैं. तो इस वजह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता है. जबकि जो उसमें अगर आप देखेंगे ठंड के टाइम पे क्या होगा, जो बाहर की एयर है वो ठंडी होती है और अंदर की एयर थोड़ी सी गर्म रहेगी उससे. तो इस वजह से वो सारी बाहर चली जाती है. ठीक है, हमेशा गर्म हवा एक तरफ आएगी और ठंडी हवा उसको आपस में एक दूसरे को ये एक्सचेंज करती रहती है. इनका साइकिल चलता रहता है. द रिजल्ट इज डेट. अब इसमें रिजल्ट क्या होता है, दोज रीजन टेंड टू बी मोर टेम्परेट. अब ये रीजन ज़्यादा टेम्परेट होते हैं, मतलब ज़्यादा इनके साथ जो है टेम्परेचर चेंज होता रहता है. एज यू मूव इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट. अब जैसे ही आप कोस्ट से लैंड की तरफ आते हैं, द टेम्परेचर गेट मोर एक्सट्रीम. तो टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. समर टेम्परेचर विल बी हाइयर एंड विंटर टेम्परेचर लोअर. अब समर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और विंटर का टेम्परेचर कम होता है. ठीक है, किससे, सी वाले से. फॉर इंस्टेंस मुंबई एंड नागपुर आर लोकेटेड एट अ सिमिलर लैटिट्यूड. ठीक है, मुंबई और नागपुर दोनों ही सिमिलर मतलब जो लैटिट्यूड है उनकी ऊंचाई है सेम है. बट मुंबई बीइंग नियर द सी, लेकिन मुंबई जो सी के पास है, हैज़ कूलर समर. यहाँ पे जो गर्मी होती है जब, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है अगर आप कंपेयर करेंगे नागपुर से. एंड माइल्डर विंटर, और विंटर भी ऐसे ही होती है नॉर्मल. वाइल नागपुर में क्या होगा, ये क्या है, कोस्ट से दूर है, थोड़ा सा दूर है समुद्र से. इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपीरियंसेस अप टू 44 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस इन विंटर. ठीक है, अब देखो मुंबई में कितना था, 32 डिग्री था, और नागपुर में कितना हो गया, 44 डिग्री, बिकॉज ऑफ द कोस्टल. एज यू कैन सी, मुंबई रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस विद द रेंज ऑफ नागपुर रीचेज 34 डिग्री. ठीक है, तो इनका जो है दोनों का जो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे या टेम्परेचर देखेंगे कितना चेंजेस है, जैसे मुंबई का अगर आप दोनों का टेम्परेचर देखते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 14 डिग्री है. जबकि अगर आप नागपुर का देखेंगे जो समर में 44 है एंड विंटर में
10 डिग्री सेल्सियस है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस तक इनके टेम्परेचर में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है विंड्स। विंड कैन मूव मासेज ऑफ वार्मर और कूलर एरिया। तो विंड जो है मूव करती है कूलर से वार्मर या इस तरह से एरिया में। स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ओफन रिसीव विंड्स ब्लोइंग ओवर द वेस्ट। सो इस तरह की जो है मतलब जो वेस्ट की तरफ से आ रही हैं वो सारी विंड यहाँ से जाती हैं। हैविंग ट्रेवल्ड ओवर द डेजर्ट ऑफ अरेबिया टू अफगानिस्तान, और ये ट्रैवल करती हैं अरेबिया से लेकर अफगानिस्तान तक जाती हैं। अब ये क्या होता है इसकी वजह से, दे ब्रिंग ड्राई एंड हॉट एयर डेट कोजेज सेवरल हीट वेव्स इन समर। तो ये बिल्कुल ड्राई होती है और हॉट होती हैं जिसकी वजह से हीट वेव्स भी आती है गर्मियों के टाइम पर। इन विंटर कोल्ड विंड फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयाज क्रीप्स इनटू द हिमालयन फुटहिल रिजल्टिंग इन कोल्ड वेव्स। और ठंड के टाइम पे क्या होता है, हिमालयज में से बहुत ठंडी हवाएं वहाँ से आती है जिसकी वजह से कोल्ड वेव्स वहाँ बनती हैं। विंड्स अफेक्ट नॉट ओनली टेम्परेचर। अब विंड्स की वजह से सिर्फ टेम्परेचर पे ही अफेक्ट नहीं होता बट ऑल्सो ह्यूमिडिटी एंड इन टर्न प्रेसिपिटेशन। तो ह्यूमिडिटी भी होती है और प्रेसिपिटेशन दोनों में ही उसमें वजह से अफेक्ट आता है। Now, we saw dry winds coming from distant desert. In contrast, winds coming from the sea bring moistures over the land. अब जो विंड्स हवाएं डेजर्ट से आती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं, सूखी होती है, जबकि जो यहाँ से लैंड कोस्टल एरिया से जाती हैं या सी से जो आती हैं उनमें मॉइस्चर होता है, विच में रिजल्ट इन रेनफॉल। अब जो मॉइस्चर होगा तो जैसे ही वो गर्म होती हैं तो क्या होगा, उसकी वजह से रेनफॉल होता है। वी विल सी सोन द केस ऑफ मानसून, सी द केस ऑफ द मानसून विंड्स। तो अभी जो हम इसके बाद वो भी पढ़ने वाले कि वो क्या है। नाउ इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी यू स्टडीड द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपने पढ़ा है। द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ सर्फेस एवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो। तो आपने ये पढ़ा है कि जैसे ही वाटर से या अर्थ से जो भी ओशन से पानी जाता है वो एवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है वेपर बन के, एंड देन रिटर्न हो जाता है एज अ रेन, हेल और स्नो के रूप में। ओके, नाउ टोपोग्राफी। अब ये क्या है, द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया। क्या है, किसी भी एरिया का फिजिकली सरफेस फीचर जो है उसे हमने बोला है दिस में इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैली, स्लोप, कोस्टल्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। सो टोपोग्राफी, फाइनली द टोपोग्राफी ऑफ अ रीजन, यानी कि उसका फिजिकल सरफेस कैसा है उस जगह का, इज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट। सो उस जगह, वो जगह कैसी है, फिजिकली कैसा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस जगह के क्लाइमेट में। फॉर इंस्टेंस द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज प्रोटेक्ट to some extent the Indian subcontinent from the winds of the cold desert of Central Asia। जैसे कि हिमालय और काराकोरम जो रेंज हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट को, किससे, सेंट्रल एरिया से, जो कोल्ड डेजर्ट से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे। द नियरली फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या है, थार डेजर्ट है जो कि बिल्कुल ही फ्लैट है। टोपोग्राफी का मतलब बिल्कुल फ्लैट जगह है वो। हैज़ नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स। अब उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उससे तो हमें जो है मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उसकी हॉट और ड्राई विंड्स आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी द रोल ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडियन सदर्न वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे ना। अब ये जो सब हमने पढ़ा ये देख लेते हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज डिटरमाइंड कलेक्टिवली बाय ऑल द अबव फैक्टर। अब किसी भी जगह का क्लाइमेट किस में डिपेंड करता है, सारे फैक्टर जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सब एक साथ आते हैं तो उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड होता है। डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेन्स और स्नोफॉल, occurrence of fog or mist and wind condition in a region over 3 decades or more। तो मतलब इतने टाइम तक वो चेक करना पड़ता है सब कुछ, उसके बाद जो है पता चलता है कि उस जगह का या उस एरिया का क्लाइमेट क्या है। अब माइक्रो क्लाइमेट, अब माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, इज़ अ क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया में बताया जाता है कि ऐसा मतलब यहाँ का क्लाइमेट है। विच डिफर फ्रॉम द क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट से अलग होता है इन सराउंडिंग रीजन, जो आसपास के रीजन है उसमें। इट हैज़ यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, इसका एक अलग पैटर्न होता है टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, प्रेसिपिटेशन का एक्सेट्रा, इन सब में अलग जो है पैटर्न देखने को मिलेगा। इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में सारी चीज़ें बिल्कुल अलग मिलती हैं।
For instance, enclosed valleys and some forest have microclimate ऑफ देयर ओन, जैसे कि कोई एनक्लोज वैली है या फिर कुछ फॉरेस्ट वगैरह है जिनका अपना क्लाइमेट होता है. So do urban heat islands, that is some cities that have a large number of building and other concrete structure and very little vegetations. अब क्या होता है, कहीं पर जो है अर्बन हीट आइलैंड्स होते हैं. अब उसमें क्या होता है, सिटीज़ होती हैं जिसमें बिल्डिंग ज़्यादा है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा, और वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे वहाँ पर बहुत कम है. ऑल दीज ट्रैप्स द हीट, अब ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं. दे आर ओफन मच वार्मर देन द सराउंडिंग रीजन, और ये आसपास के रीजन की बजाय ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि हीट होती है इसमें, हीट को ये अपने अंदर ही ट्रैप करके रखते हैं. माइक्रो क्लाइमेट कैन इन्फ्लुएंस द लोकल फ्लोरा एंड फोना. जो माइक्रो क्लाइमेट है वो आसपास का जो फ्लोरा एंड फोना यानी कि पेड़ पौधे हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है. द क्रॉप्स ग्रोन एंड इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग. क्रॉप्स भी ग्रो करती है और ह्यूमन हेल्थ को और वेलबींग को भी पूरा इम्पैक्ट करते हैं. नाउ द मानसून सीजन इज़ सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया. तो सेंट्रल मतलब लाइफ का जो है एक सेंटर है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया में. ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स द रिवर फिल हो जाती हैं, सोइल जो है सोक्ड हो जाती है विद वाटर, क्रॉप ग्रो करती हैं एंड लाइफ थ्राइव्स. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वर्ड मानसून विच comes from the Arabic word moism meaning season, तो इसका मतलब भी सीजन है, refers to seasonal winds over a large area of Indian Ocean and surrounding regions including Australia, Africa and South Asia. तो अब ये क्या होता है, एक अरबिक वर्ड है मोज़म जिसका मतलब सीज़न होता है, यानी कि सीजनल विंड्स होती हैं जो इंडियन ओशन से होते हुए जो आसपास के एरिया है वहाँ पे जाती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ एशिया वगैरह भी हैं. दिस इज़ ईयरली पैटर्न ऑफ द मानसून, और ये हर साल ऐसे ही होता है. देयर मैकेनिज्म इज़ कॉम्प्लेक्स. अब इनका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट लैंड हीट्स अप और कूल डाउन फास्टर देन द ओशन. लेकिन एक सिंपल से फैक्ट पर है कि जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है इन कंपेयर टू ओशन. मानसून ब्रिंग आउट द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट. अब मानसून क्या होता है, जो एक रिलेशनशिप है टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर, विंड मूवमेंट और उसके विंड के प्रेशर के बीच में, उनका एक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से मानसून आता है. टू पुट इट सिंपली, इसको और सिंपल करने के लिए, एज समर बिगिंस, जैसे ही ठंड आती है, गर्मियाँ आती हैं, द एशियन लैंड मास हीट अप, तो एशियन जो लैंड है वो गर्म हो जाता है, क्रिएटिंग अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट, जिसकी वजह से पूरा लो जो है एयर प्रेशर हो जाता है. अब देखो मोस्टली क्या होता है, जब भी गर्म होगी हवा, जब भी गर्म होती है, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है. अब ऊपर गई तो नीचे का एरिया क्या हो गया, खाली हो गया. अब नीचे के एरिया को फिल करने के लिए एयर चाहिए, तो कहाँ से आती है, ओशन जो है उस एरिया को फिर कर देता है अपनी तरफ की जो ठंडी हवाएं हैं उससे. सिंस एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब एयर क्या होती है, गर्म हो गई तो गर्म होकर वो कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ, यानी कि जहाँ पे ठंडा होगा. विंड्स आर ड्रोन फ्रॉम द कूलर हाइयर प्रेशर ओशन टुवार्ड्स द हॉट लैंड. अब विंड्स कहाँ होंगी, जो ठंडी हैं उस तरफ पे जा रही हैं, ठीक है, यानी कि ओशन की तरफ जा रही है. जो हाई प्रेशर ओशन है वो क्या होता है, हॉट लैंड की तरफ जाता है, यानी कि गर्मी जहाँ पर है लैंड की तरफ, जहाँ गर्म है उधर जाएगा. दीज ओशन विंड कैरी मॉइस्चर्स that condense over the warmer land and fallen into the form of heavy monsoon rains. अब ओशन में से जो रेन्स आएंगी उनमें पानी तो होगा, मॉइस्चर तो होगा, तो जैसे ही वो गर्म जगह में आती है वो क्या करती हैं, रेन की तरह कंडेंस होकर नीचे गिर जाती हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मॉनसून रेन्स. दिस इज़ वाई मॉनसून कॉमनली रेफर एज द सीजनल रेन्स रादर देन द विंड्स. इसलिए इसे सीजनल रेन्स भी बोल देते हैं विंड की बजाय. सो अब देखो ये समर का है, ये विंटर का है. समर से है तो एयर यहाँ पर जा रही है और विंटर में होता है तो वापस आ रही है. द पैटर्न रिवर्स इन विंटर, विंटर में पैटर्न बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. वेयर द लैंड मास कूल्स डाउन, अब लैंड क्या होगा, ठंडा होगा विंटर में, और मोर रैपिडली देन द ओशन, जल्दी ठंडा होता है इसके ओशन में, तो ओशन उस टाइम पे क्या होगा, इसके लिए गर्म होगा. नाउ द लैंड हैज़ अ हाई प्रेशर सिस्टम वाइल द ओशन रिमेन वार्मर विद रिलेटिवली लोअर प्रेशर, और ओशन मोस्टली वार्मर रहेगा उसके प्रेशर में. दिस कोसेज द विंड टू ब्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसकी वजह से विंड अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन, ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशंस टू मच ऑफ द एशिया, जिसकी वजह से ज़्यादातर एशिया के पार्ट में ड्राई होता है.
Now coming to India, the monsoon rains typically advance from the southern tip of India in early June, moving northward over several weeks until they cover the entire subcontinent by mid July. सो अब इंडिया में क्या होता है, मानसून जो है टिपिकली एडवांस कभी आ जाती है सदर्न टिप में, जो मतलब बिल्कुल सदर्न पार्ट में है इंडिया के, वहाँ पर जैसे कि जून में, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्थ में आगे की तरफ बढ़ती रहती है जुलाई तक, कुछ हफ्ते तक, अनटिल दे कवर द एंटायर, पूरे सब जो है जितना सब कंटिनेंट है यानी कि पूरे इंडिया को कवर कर लेती है मोस्टली मिड जुलाई में। इट इज़ नॉट अ स्मूथ प्रोग्रेशन, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, दो द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, वो नेचुरल बैरियर की तरह वहाँ पर काम करते हैं। देयर वेस्टर्न स्लोप्स रिसीव मच रेनफॉल, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वाइल द जो डेकन प्लेटू है टू द ईस्ट रिसीव लेस, वहाँ पे कम, एंड ओफन विद इंटरप्शन, दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड द समर और साउथ वेस्ट मानसून। तो इसीलिए जो है इसे कई बार समर या साउथ वेस्ट मानसून भी बोला जाता है। साउथ वेस्ट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन द विंड्स कम फ्रो, कि इस डायरेक्शन से विंड आ रही है। एज विंटर अप्रोचेज, जैसे जैसे ठंड आती है, द विंड रिवर्स विंड जो है वापस आने लगती हैं, एंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, अब लैंड से ओशन की तरफ जा रही हैं, एज वी जस्ट सो, जैसे अभी हमने देखा। देयर आर ड्राई विंड्स डैट ब्रिंग कोल्ड वेदर टू द साउथ इंडिया, और यहाँ पर बिल्कुल जो है सूखी या ड्राई विंड्स होती हैं जो कोल्ड वेदर से कहा जा रही है, साउथ इंडिया में जो कोल्ड वेदर लेकर आती है जिनकी वजह से। बट अ पार्ट ऑफ देम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, लेकिन एक पार्ट उनमें से बे ऑफ बंगाल में से पास करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे वहाँ से, और सम पार्ट्स में रेनफॉल उस टाइम पर भी आता है, bring rainfall to parts of its and South India. This is called the winter or northeast monsoon. इसे क्या बोला जाता है, विंटर मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। माइसोरम लोकेटेड इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल यहाँ पर आती है अबाउट 11,000 मिलीमीटर, विच इज़ सेम एज द 11 मीटर। तो इतनी बारिश यहाँ आती है। द मानसून हैज़ इंस्पायर्ड मैनी रागाज इन बोथ कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। सो मानसून से इंस्पायर होकर बहुत सारे राग भी बने हैं, जैसे कर्नाटिक म्यूज़िक में भी और हिंदुस्तानी जो क्लासिक म्यूज़िक है उसमें भी, जैसे मेघ मल्हार एंड अमृता वर्सनी आर नेम्स ऑफ कपल ऑफ देम, जिसमें से कुछ ये भी हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, सिंस द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द मानसून रेनफॉल हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। सो एबिलिटी की मानसून कब आएगा, किस टाइम आएगा, कितना आएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। अवर एंसेस्टर ऑब्जर्व नेचर अराउंड देम केयरफुली, हमारे जो एंसेस्टर थे, जो पहले के लोग थे, वो अपने नेचर को केयरफुली ऑब्जर्व करते थे, देखते थे। दे डेवलप्ड लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस, तो उनकी भी जो है अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से मिली है। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ एन इम्पोर्टेंट हेरिटेज वी मस्ट प्रिजर्व, अब उनकी जो नॉलेज है वो ऐसी है जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन ऑफ ऑन द कोंकण कोस्ट प्रिडिक्ट द onset of the monsoon when fishes that नॉर्मली स्टे अंडर आर सीन एट द सर्फेस। तो अब क्या होता है, कोंकण वेस्ट पे जो फिशरमैन हैं वो फिशेस को देखकर बता देते हैं, अगर वो सेट पर किनारे पर आ गई हैं या इस तरह से हो गया तो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि बारिश आने वाली है या क्या होगा, या ज़्यादा बारिश आएगी या किसी भी तरह से। इन द पार्ट ऑफ सदर्न इंडियन मानसून इंडिया, मानसून इज सेड टू अराइव विद इन 50 days आफ्टर द गोल्डन शावर ट्री कैसिया फिटूला ब्लूम्स। और सदर्न मोस्टर्न पार्ट में क्या होता है, जब ये ट्री जो है ब्लूम करते हैं, इनके इसमें फूल आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि उसके 50 days बाद क्या होगी, बारिश आएगी, मानसून आएगा। सम कम्युनिटीज़ ऑल्सो बिलीव डैट व्हेन क्रो बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन ट्री टॉप्स, और कुछ बिलीव करते हैं कि जब क्रो जो है अपना नेस्ट बिल्कुल ऊपर बनाए ट्री टॉप पर, इट इंडिकेट लेस रेनफॉल, की कम बारिश होगी। वेयर एज इफ़ द नेस्ट आर लोअर, जब ये हो कि नेस्ट बहुत नीचे हैं, लोअर हैं, रेनफॉल इज़ लाइकली टू बी हैवी, रेनफॉल ज़्यादा होगी। मेक अ लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज अबाउट रेन, फॉग, स्नो और हेल इन योर एरिया। तो इस तरह की जो भी आपको पता चले, आपको अपना उनका एक लिस्ट बनाना है। Make a list of such local knowledge about rain, fog, snow and hail in your area. So traditional knowledge about weather has been passed down by elders and farmers who observe nature. Rain prediction, croaking of frogs. Loud and continuous croaking is considered a sign of upcoming rain. Ant moving upwards. When ant climb walls or trees carrying food, believe rain is near.
रेड सनसेट और सनराइज, अ डीप रेड कलर इन द स्काई ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज ओपन सिग्नल रेन जो है 24 to 20 आवर्स में आने वाली है। बर्ड बिहेवियर, swallows flying close to the ground indicate rain is near. Crows building low nest, heavy rainfall is expected. तो मतलब ये अलग अलग तरीके हैं जैसे पहले के लोग फाइंड आउट करते थे कि रेन है या नहीं है, आएगी या नहीं। फॉग इंडिकेटर क्या है? श्रीपिंग ऑफ बर्ड्स स्टॉप सडनली इन द मॉर्निंग, इट इज़ बिलीव्ड दैट द थिक फॉग इज लाइकली व्हेन अर्ली मॉर्निंग बर्ड साउंड सडनली बिकम साइलेंट। अगर बर्ड जो है सुबह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो बहुत ज़्यादा फॉग होने वाली है। वेब्स ऑफ स्पाइडर ऑन प्लांट्स, a high number of visible spider web on leaves indicate dew and fog will form at night. Snow, hilly area में क्या होगा? Thick woolly coats in sheep or goats. Local shepherd observed that animal grow thicker coats. अगर उनके ऊपर जो है thicker coats आता है यानी कि उनके जो हेयर होते हैं वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं पहले से, तो that means when heavy snow is expected that winter. Hail prediction, sudden cold wind or yellow grey clouds. Farmers see that when the sky become yellowish with cloud gusty winds, so hailstorm आने वाला है उस टाइम पर। Climate and our lives. So our lives are deeply connected with the climate and dependent on it. So हमारी लाइफ क्लाइमेट से बहुत जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और डिपेंड हैं हम इस पे। The impact of climate is visible in local cultures. For instance, and इंडिया हैज़ मैनी फेस्टिवल एसोसिएटेड विद सीजन्स एंड एग्रीकल्चर्स एक्टिविटीज़। सो क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, ये हमारे लोकल कल्चरल जो हैं कल्चर्स जो हैं उनमें दिखाई देता है, और बल्कि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हैं जो सीजन से ही एसोसिएटेड हैं। रीच आउट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स इन योर नेबरहुड, आस्क दैम अबाउट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड डांस दे रिमेंबर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड यूथ, स्पेशली दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और रेन। ठीक है, उनसे आपसे पूछना है। सो जैसे कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल में आप मकर संक्रांति बोल सकते हैं जो जनवरी में होता है आफ्टर विंटर हार्वेस्ट। पीपल फ्लू काइट्स, प्रिपेयर्ड तिल गुड़ और खिचड़ी और प्रेयर्ड फॉर गुड क्रॉप साइकिल। तीज एंड हरियाली अमावस सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मानसून mainly by women. Girls and women sang songs and danced on swings tied to trees thanking nature for the rain. पोला इन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में होता है, a festival where farmer decorate and worship their bullocks. भागोरिया हाट मध्य प्रदेश by भील tribes celebrated before Holi marking the end of harvesting. फोक डांस और सॉन्ग्स गरबा और रास होता है नवरात्रि में चेंजिंग सीजन को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। घूमर होता है राजस्थान में, पोस्ट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन होता है मोस्टली। झिझिया फोक डांस है फ्रॉम बिहार परफॉर्म टू प्रे फॉर रेन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रोट। सॉन्ग अबाउट क्लाउड्स रेन एंड हार्वेस्ट वर संग ड्यूरिंग सोइंग एंड रिपिंग। रिचुअल्स ऑफ रेन, कावेरी पूजा एंड वरुण देव पूजा वर परफॉर्म टू आस्क द रेन गॉड टू टाइमली शावर। इन सम एरियाज विलेजर्स वर्शिप्ड फ्रॉग्स बिलीविंग इट कुड रेन, तो उसकी भी पूजा की जाती है। सम वुमेन परफॉर्म जल यात्रा कैरिंग पोर्ट्स ऑफ वाटर टू द टेम्पल एज पार्ट्स ऑफ प्रेयर फॉर रेनफॉल। नाउ द क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी पर भी क्लाइमेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस यू मे हैव हर्ड द फ्रेज मॉनसून फेलियर, जैसे कई बार आपने सुना होगा मॉनसून फेलियर। इसका मतलब क्या होता है? अब ये देखो अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग सीज़न में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो सब यहाँ बताए हैं। अब उसका मतलब क्या है? मॉनसून जो फेलियर बोलते हैं, डैट मीन्स टू पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, यानी कि मॉनसून सीजन में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बहुत कम जो है बारिश हुई है। इन सच केस द एग्रीकल्चर सफ़र, अब एग्रीकल्चर सफ़र होगा। पीपल जो हैं हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वाटर, पानी के लिए बहुत दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ेगा। एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स आर लाइकली टू माइग्रेट टू द सिटीज़, और जो एग्रीकल्चर में लेबरर का काम करते हैं उन्हें भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, शहरों में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। फूड बिकम कॉस्टलियर, खाना जो है जो भी होगा वो कॉस्टली हो जाएगा। फ्यूलिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब सब चीज़ें जो हैं उस टाइम पे महंगी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी डिपेंड और मोस्टली जो है डिपेंड करता है, प्रेडिक्टेबल होता है वेदर पे। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर मानसून ही नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगी, तो सब चीज़ें एक तरह से धीमी हो जाएंगी। द वर्ल्ड ओवर वी कैन ईजिली डिटेक्ट सच कनेक्शन बिटवीन द क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सो पूरी दुनिया में हम ईजिली कनेक्शन बता सकते हैं कि क्या कनेक्शन है क्लाइमेट का और सोशियो इकोनॉमिक किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोज कंडीशन
गेट स्पेशली स्ट्रेन्ड व्हेन क्लाइमेट डिज़ास्टर स्ट्राइक, और ये कंडीशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब कोई क्लाइमेट डिज़ास्टर आता है तो उस टाइम पर. नाउ द क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर्स. India's diverse weather pattern can bring about extreme conditions such as cyclones, floods, landslides and other such climate related disasters. अब इंडिया का क्या है, डाइवर्स है, वेदर पैटर्न है. मतलब जो वेदर पैटर्न है वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो कई बार एक्सट्रीम भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन्स, फ्लड, लैंडस्लाइड्स और बाकी क्लाइमेट डिजास्टर भी होते हैं. दीज इवेंट्स इफेक्ट पीपल लाइफ्स, इनकी वजह से लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है, डिस्टर्ब होता है एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो जाता है, लोकल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है. नाउ अब ये हैं क्या क्या. साइक्लोन्स. एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट लाइन, स्पेशली द ईस्टर्न कोस्टन, विटनेस सेवरल साइक्लोन्स. सो हर साल जो है इंडियन कोस्ट लाइन में जो है, खासकर की जो ईस्टर्न कोस्टन है उसमें बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं. इन द पास्ट ईयर सम ऑफ देम हैव बीन हाईली डिस्ट्रक्टिव, जबकि कुछ में तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिसमें रिजल्ट क्या होता है, इन द लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, डैमेजिंग प्रॉपर्टी एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपरूटिंग ट्रीज एंड कोजिंग सोइल इरोजन. सो ये सब चीज़ें उसमें होती है, लोगों की जान चली जाती है, एनिमल्स की चली जाती है, प्रॉपर्टी जो भी स्ट्रक्चर वहाँ बना के रखे सब खराब हो जाता है, ट्रीज टूट जाते हैं और सोइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कीप ट्रैक ऑफ कमिंग साइक्लोन्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर फॉर्मेशन. सो जो IMD है वो ट्रैक रखती है कि कौन सा साइक्लोन आ रहा है या कितनी जो है स्पीड से आ रहा है, क्या है वो सब, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और प्लेस ऑफ लैंडिंग, मतलब सब चीज़ें वो पहले से ही बता देते हैं, तैयार रखते हैं. नाउ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF इज़ अ स्पेशल ट्रेन टू रिस्पॉन्ड टू नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड डिजास्टर. तो ये जो है एक स्पेशल ट्रेन फोर्स होती है जिसका काम होता है इसी तरह की जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह होती है या कोई भी नेशनल डिजास्टर होगा उसमें जल्दी से जल्दी हेल्प करना. NDRF battalion are located at 12 different location in India. तो 12 जो अलग अलग लोकेशन है जहाँ ये होता है. The NDRF has played a key role in rescues and evacuation during disaster like cyclones, landslides and floods. So ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजास्टर के टाइम पर, लैंडस्लाइड या फ्लड कब भी होता है कि इवैक्यूएशन करना, लोगों को निकालना वहाँ से, रेस्क्यू करना, इन सब में. नाउ साइक्लोन है क्या. सो हाउ आर साइक्लोन फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं. वी सो डैट इन सम स्पेसिफिकल सिचुएशन, कुछ स्पेशल जो सिचुएशन होती है, द एटमोस्फेरिक प्रेशर नियर द सी बिकम लोअर देन द सराउंडिंग एरिया. तो जो सी के आसपास का एरिया होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें कम हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम होगा. दिस इज़ एन इन्विटेशन ऑफ द एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया टू कम इन टू द लो प्रेशर एरिया. अब एयर क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, सो सब एयर उधर जा रही होती है. एंड द एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन, और जो हाई प्रेशर पे उसमें जो है क्या होगा, सी की जो एयर है वो वहाँ पर आएगी. ब्रिंगिंग विद इट्स मॉइस्चर, जो अपना मॉइस्चर और रेन साथ में लेकर आती है. व्हेन द लो प्रेशर सिस्टम इज इन इंस्टेंस, जब लो प्रेशर सिस्टम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड द विंड स्पीड्स आर हाई, और विंड की स्पीड भी ज़्यादा होएगी, दिस में रिजल्ट इन साइक्लोन, जिसकी वजह से साइक्लोन आता है. एज विंड कलेक्ट्स मॉइस्चर, और जो सी से जो विंड आएगी उसमें तो मॉइस्चर होता ही है. दे फॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड्स बनाते हैं. रोटेट इनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिप्रेशन, जो एक सेंटर बना रहे होते हैं ना वहीं पर वो रोटेट करते रहते हैं. दिस सेंटर विच इज़ क्लाउडलेस, जिसमें क्लाउड नहीं होता, इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन, जिसे क्या बोला जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन. ठीक है, ये लो प्रेशर सिस्टम हो गया, क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं, विंड ब्रिंग मॉइस्ट फ्रॉम द सी. नाउ वट आर क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या है. सो वाइट लम्स इन द स्काई, स्काई में जो वाइट लम्स दिखाई देते हैं, यू माइट से, बट वट आर दे मेड ऑफ, कैसे बनते हैं. सो द आंसर इज सिंपल, वाटर, पानी से. बट नॉट जस्ट एनी वाटर, क्लाउड्स आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो एक साथ आती हैं तो क्लाउड फॉर्म होता है. आइस क्रिस्टल और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, कई बार दोनों भी होते हैं. डेट आर सस्पेंडेड इन द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर में ऐसे ही पड़े हैं. नाउ वट आर क्लाउड्स, white lumps in the sky, you might say, but what are they made for. So clouds are masses of tiny water droplets, ice crystal, or sometime a mixture of both. They are suspended in the atmosphere. They form when warm moist air rise and cools down. As the air cools, the water vapors in it condense around tiny dust particle of to form droplets.
while together appears as clouds, तो वो एक क्लाउड की तरह आपको दिखाई देते हैं. They float because they are made of very fine and light particles carried by air current. अब ये फ्लोट करते हैं क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल होती है, इनके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर करंट उन्हें कैरी करती होती है. When these droplets combine, अब ये ड्रॉपलेट जब कंबाइन होते हैं और हैवी हो जाते हैं, देन ये फॉल एज रेन, स्नो और हेल, तो वो रेन के रूप में नीचे गिरते हैं. तो ये देखो ये आई हो गया उसका, तो आई ऑफ द स्टॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पर लो प्रेशर है जिसकी वजह से सारी की सारी जो है एयर वहाँ पर जा रही है, क्योंकि एयर हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होता है. नाउ द फ्लड्स. अ फ्लड ओकर व्हेन वाटर ओवरफ्लोज इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड्स. फ्लड क्या होता है? जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है कहाँ पर? ड्राई लैंड्स में नॉर्मली. ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल. ये हो सकता है हैवी रेनफॉल की वजह से, जिसकी वजह से जनरेट होता है ह्यूज रन ऑफ वाटर दैट द लैंड कैन नॉट ऑब्जर्व. तो ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है? ज़्यादा पानी आ जाता है. ज़्यादा पानी की वजह से जो लैंड है मोस्टली वो ड्राई रहता है, तो वहाँ पे इतना पानी वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो इस वजह से वहाँ पर वो पानी बाहर दिखाई देता है, तो क्या होता है? फ्लड जैसा हमें दिखता है. और ड्यू टू द एक्सेसिव अकोमोडेशन the water in bodies like rivers and lakes until the water overflows or their bank are breached. अब क्या होता है? जब ज़्यादा बारिश हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो जो रिवर हैं, लेक्स हैं, उनमें पानी ओवरफ्लो होने लगता है, या फिर उनके जो बैंक्स वगैरह जो किनारे बना रखे हैं, जो बाउंड्रीज बना रखी हैं, वो भी टूट जाती हैं, और जिसकी वजह से आसपास के एरिया में पानी पानी हो जाता है. फ्लड्स ओकर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द मानसून्स. मानसून के टाइम पे फ्लड सबसे ज़्यादा होता है. स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश एंड असम आर पर्टिकुलरली वेलनरेबल और टू फ्लड्स. यहाँ पर ज़्यादा फ्लड्स आती हैं. नाउ लेट अस एक्सप्लोर. हैव यू सीन और रीड अबाउट फ्लड्स? क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है, देखा है? फिजिकल मैप पर देख सकते, जैसे अभी पंजाब में भी फ्लड आई थी, तो वो आपने देखा होगा. तो इस तरह से आपने, मतलब न्यूज़ में बहुत आया था, तो आप देख सकते हैं, उसको आपको पेयर में डिस्कस करना है. इन दिस एरिया मैंशनड अबो, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश एंड असम आर मोर प्रोन टू फ्लड्स. यहाँ ज़्यादा आती है. अब रीज़न क्या है? सो ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का. अब यहाँ से इस मैप को देखकर आपको बताना था कि कहाँ पे या किस वजह से इन जगहों पे ज़्यादा जो है फ्लड वगैरह या इस तरह के नेचुरल डिजास्टर जो हैं वो ज़्यादा क्यों होते हैं. सो इस मैप के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर्स. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स, यूपी, बिहार और असम. दीज एरिया आर लो लाइंग प्लेन विद मैनी रिवर्स. तो यहाँ पर रिवर ज़्यादा है और ये नीचे का एरिया है थोड़ा. ड्यूरिंग मानसून रिवर ओवरफ्लो होती है हैवी रेनफॉल की वजह से. इन असम द ब्रह्मपुत्र रिवर ओफन फ्लड इट्स बैंक. हैवी रेनफॉल इन कोस्टल एरिया, केरला और आंध्र प्रदेश. दिस स्टेट रिसीव इंटेंस मानसून रेन. तो ज़्यादा मानसून हो जाती है, मतलब मानसून में जब ज़्यादा रेन आती है, समटाइम्स साइक्लोन भी आ जाते हैं ब्रिंगिंग एडिशनल रेन, तो कोजिंग रिवर एंड लेक्स टू ओवरफ्लो, जिसकी वजह से रिवर्स और लेक जो है ओवरफ्लो हो जाती हैं. पुअर ड्रेनेज एंड अर्बनाइजेशन, जो है ड्रेनेज सही से नहीं होता है, अर्बनाइजेशन हो जाता है. सो इन सिटीज़ कॉन्क्रीट सरफेस एंड ब्लॉक्ड ड्रेन्स डोंट अलाउ वाटर टू सोक इनटू द ग्राउंड. सो अलाउ नहीं करते क्योंकि कॉन्क्रीट सरफेस है, तो पानी अंदर नहीं जा पाता है ज़मीन में, जिसकी वजह से जो है अर्बन फ्लडिंग होती है. डिफॉरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन, कटिंग ट्रीज रिड्यूस नेचुरल वाटर अब्जॉर्वेशन लीडिंग टू मोर रन ऑफ एंड फ्लड्स. तो ज़्यादा जो है फ्लड आती है. नाउ इन द हिमालयन रीजन ऑन द अदर हैंड फ्लड ओकर व्हेन ग्लेशियर लेक्स. अब जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे फ्लड किसकी वजह से आती है? तो वहाँ आती है जो ग्लेशियर लेक होती है, यानी कि जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमी होती है, उन लेक्स जब वो ओवरफ्लो होती हैं तो उसकी वजह से. ग्लेशियर लेक्स फ्रॉम अ बैरियर ऑफ रॉक्स एंड आइस टू होल्ड देयर वाटर. तो वो जो है रॉक और मतलब वो एक तरह से लेक फॉर्म करते हैं बैरियर को, जिसकी वजह से बैरियर बनाते हैं रॉक से और आइस से, ताकि उनके पानी को वो होल्ड कर सकें. विच ऑफन कम्स विद फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर. और वो पानी कहाँ से आ रहा होता है? जो मेल्टिंग ग्लेशियर है, जो स्नो है हिमालय के ऊपर, वो ग्लेशियर वगैरह जो हैं वो जब मेल्ट हो जाते हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो इफ़ द ग्लेशियर मेल्ट टू फास्ट, अगर वो ज़्यादा फास्ट मेल्ट होने लगते हैं, एज इज़ इंक्रीजिंगली द केस, और इफ़ देयर इज़ टू मच रेनफॉल, और ज़्यादा बारिश हो जाती है, द बिल्डअप ऑफ प्रेशर कैन कोज वाटर टू ब्रेक थ्रू द बैरियर, जिसकी वजह से पानी क्या होता है? ब्रेक थ्रू हो जाता है और निकल जाता है. अब ये देखो बहुत सारे साइक्लोन की वजह से लैंडस्लाइड हो जाते हैं,
और यहाँ पर फॉरेस्ट फायर वगैरह, फ्लड वगैरह बहुत सारे जो है नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ ग्लेशियल बरस्ट, जिसे हम ग्लेशियल बरस्ट बोलते हैं, एंड इट ऑफन हैज़ डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेज फॉर पीपल एंड प्रॉपर्टी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसमें होती है। नाउ डोंट मिस आउट, इन 2013 उत्तराखंड एक्सपीरियंस्ड अ सडन ग्लेशियल बर्स्ट caused by a continuous heavy rain over several days। तो बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मैनी लैंडस्लाइड्स फॉलोड, बहुत लैंडस्लाइड्स भी हुई। एरिया अराउंड वन ऑफ इंडियाज इंपॉर्टेंट सेक्रेड सिटी साइट्स द केदारनाथ टेम्पल्स। और जो एरिया था जिसे एक बहुत मतलब पवित्र जगह ही माना जाता है, केदारनाथ टेम्पल भी उसमें था, वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया था। सेवरल विलेजेस वर वॉस्ड अवे इन द फ्लड, और बहुत सारे गांव जो है पूरे के पूरे गांव वहाँ पर बह गए थे साथ के साथ ही जब पानी आया था फ्लड के साथ। अलॉन्ग विद मैनी रोड्स एंड ब्रिजेस, बहुत सारे रोड और ब्रिजेस भी साथ में बह गए। ऑल टुगेदर अबाउट 6,000 पीपल्स, मैनी ऑफ देम पिलग्रिम्स, लॉस्ट देयर लाइव्स, और लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ पर उस टाइम पे गई थी, और ज़्यादातर लोगों से पिलग्रिम्स थे जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे। मैनी सिटीज़ एक्सपीरियंस फ्लडिंग when there is heavy rainfall, तो जहाँ जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादातर फ्लडिंग हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। दिस मे बी ड्यू टू एन ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम और पुअरली प्लान्ड कंस्ट्रक्शन, एनकोर्चिंग ऑन द वाटरवेज एंड ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है ओवरबर्डन हो जाता है, जो प्लानिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो की गई है वो सही से नहीं की गई है, वाटरवेज को रोक दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है फ्लो पानी की, जिसकी वजह से जब ज़्यादा पानी होता है तो वो उसी फ्लो में आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा जहाँ से वो जाता था, जहाँ से उसको रोक दिया गया था। Beside, earthen surface of concrete or asphalt do not allow water to be observed by the earth। और दूसरी चीज़ क्या है, जो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आजकल वहाँ हो रहा है तो कंक्रीट का है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है नीचे धरती में नहीं जा पाता है, एब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब पानी को बाहर ही कहीं जाना पड़ेगा, तो फ्लड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है लैंडस्लाइड। अ लैंडस्लाइड इज अ सडन कोलैप्स ऑफ रॉक, सोइल और डेब्रिस ओवन ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन। अब लैंडस्लाइड क्या होता है, कभी एकदम से अचानक से जो रॉक है, मिट्टी है या डेब्रिस है, कुछ भी चीज़ है, बाहरी बारिश की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जब ये चीज़ें एकदम से गिर जाएं तो उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली एंड माउंटेन्स रीजन्स सच एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, एज वेल एज द वेस्टर्न घाट एंड हिली रीजन्स। सो ये जो है मोस्टली इन जगह पे ज़्यादा होता है। दीज इवेंट्स ओफन ओकर ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। In those regions, the chance of landslides have increased due to human activities such as cutting down of forest, building infrastructure without following approved method, and the construction of too many buildings that block the natural flow of water। अब इसका मेन रीज़न क्या है, इंक्रीज़ हुआ है लैंडस्लाइड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि लोग वहाँ पर एक तरह से उसको पिकनिक स्पॉट जो है बना लिया है, और उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हो रहा है। अब ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो क्या होंगे, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं। अब फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बिल्डिंग ज़्यादा बन रही है, और जो वाटर का जो नेचुरल फ्लो है जहाँ से वो जाता है, जैसे बारिश नहीं है तो पानी कई बार नहीं आता है, रुक जाता है, तो लोगों ने उन जगहों को घेर कर वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बना दी है, तो जब बारिश आती है तो पानी उसी जगह से आता है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती हैं। और कोई वो मेथड यूज़ नहीं कर रहे, कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी अप्रूव्ड चीज़ें वहाँ पर यूज़ नहीं हो रही हैं। Forest fires are uncontrolled fires that spread rapidly across vegetation, often fueled by dry climate condition, droughts or high winds। अब जब जंगल में अगर फायर वगैरह अगर लग जाए तो अनकंट्रोल होती है, क्योंकि आसपास पूरी ही जगह वहाँ पर वैसी ही होती है जो आग को पकड़ने वाली, जो बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे ही वहाँ होते हैं। और इसकी वजह से अगर वहाँ पे कंडीशन ड्राई है, क्लाइमेट ड्राई है और सूखा पड़ा है और ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है तो आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमन केयरलेसनेस इज़ अनदर फ्रीक्वेंट कोज, और दूसरा ह्यूमन की जो केयरलेसनेस है उसकी वजह से भी ये सब होता है। Forest fires are common in states with large forest or grassland areas such as उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो इन जगह में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट फायर होती है। एज वेल एज माउंटेन रेंज सच एज द वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन रेंज में भी कई बार देखने को मिलती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स। अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट,
Forest fires harm wildlife, degrade the ecosystem, spoil the air quality and डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज़। अब ये नहीं कि सिर्फ उससे जो है जो लार्ज एरिया है फॉरेस्ट का वो ही ख़राब हुआ है, नहीं, वहाँ से जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रॉब्लम होती है, जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है और जो लोकल लोग होते हैं वहाँ के जो वहाँ रह रहे होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। द कंसिक्वेंसेज आर देयर फॉर बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। इसके जो कंसिक्वेंसेज होते हैं वो दोनों ही होते हैं, एनवायरमेंट के लिए भी और इकोनॉमिक के लिए भी, दोनों के लिए ही ये एक तरह से गलत चीज़ है। Now observe figure 3.5-15 describe the effect that may have on people, plants and economy. So कौन कौन सा है, जैसे कि डिजास्टर, इफेक्ट ऑन पीपल, और प्लांट्स और एनिमल पे क्या होगा और इकोनॉमी पर क्या है। फ्लड, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज ऑफ होम, स्प्रेड ऑफ डिजीज। क्रॉप सबमर्ज हो जाती है, एनिमल ड्रोन हो जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्रॉप फेलियर, ट्रांसपोर्टेशन जो है डिस्टर्ब्स हो जाएगा, इंक्रीज फूड प्राइजेस। साइक्लोन में क्या होगा, इवैक्यूएशन नीडेड, इंजरीज और डेथ्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, ट्रीज़ जो हैं अप्रूट हो जाते हैं, लाइफ स्टॉक किल हो जाते हैं, डैमेज ऑफ बिल्डिंग होता है, रोड, पावर सप्लाई सब जो है ख़त्म हो जाता है। लैंडस्लाइड, डेथ होती है, इंजरीज होती हैं, लोग रोड जो है ब्लॉक हो जाते हैं और लोग वहीं पर फंस जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, एनिमल अपना हैबिटेट अपनी जगह खो देते हैं। रोड और रेल ब्लॉकेज होगी तो लॉस होगा एग्रीकल्चर लैंड का। फॉरेस्ट फायर में क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, फोर्स माइग्रेशन होता है, वाइल्ड लाइफ लॉस होता है, ट्री जल जाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट फायर है, सोइल क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो फॉरेस्ट से जो भी मिल रहा है वो सब खत्म हो जाता है, टूरिज्म अफेक्ट होता है, एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। नाउ इन द ग्रुप ऑफ 4 और 5 आइडेंटिफाई इन ईच ऑफ द अबाउट डिजास्टर द पार्ट ऑफ नेचुरल कोज एंड द पार्ट ऑफ ह्यूमन कोजेस। सो फ्लड, हैवी रेनफॉल, ओवरफ्लोइंग। ह्यूमन क्या क्या है, डिफोरेस्टेशन, पुअर ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन ऑन वेटलैंड्स। साइक्लोन, लो प्रेशर ओवर ओशन, क्लाइमेट पैटर्न, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू पोल्यूशन, पुअर प्लानिंग इन कोस्टल एरियाज। लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक होता है, हैवी रेनफॉल है या फिर स्टिप स्लोप है। कटिंग हिल्स, रिमूविंग ट्रीज, अनसेफ कंस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट फायर, ड्राई वेदर है, लाइटनिंग है, हाई टेम्परेचर है। केयरलेसनेस, कैंप फायर, सिगरेट्स, डिफोरेस्टेशन और बर्निंग वेस्ट। Discuss in the same group of series to preventive measures that could help to avoid the above disasters. So flood, build embankment, plant more trees, maintain drainage system, avoid plastic waste. Cyclone, build storage house in the coastal area, strong houses, coastal area, early warning system, plant coastal vegetation. Landslides, avoid cutting hills, afforestation and proper land use planning. Forest fires, educate people, stop open burning, monitor forest areas and create fire breaks. Climate change refer to significant long term change in the climate. So climate change क्या है, एक बहुत टाइम के बाद जो चेंज आता है क्लाइमेट में उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म चेंज। दिस इन्वॉल्व बी ऑन द स्केल ऑफ द प्लैनेट और ऑन रीजनल स्केल, तो ये हो सकता है कि प्लैनेट के स्केल पर हो या रीजनल स्केल पर भी कई बार होता है। एंड इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन टेम्परेचर, इसमें क्या क्या होगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस होता है, प्रेसिपिटेशन में चेंज है या वेदर इवेंट में चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं। इन पास्ट मिलेनिया वी कैन गो बैक मिलियंस ऑफ ईयर इन फैक्ट, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस ड्रो क्लाइमेट चेंज, नेचुरल प्रोसेस में जो है क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं सिंस द 19th century. However, climate change have been largely driven by human activities. अब climate change जो हो रहा है वो ज़्यादातर होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, पर्टिकुलरली बाय बर्निंग द फोसिल फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स जलाने की वजह से ज़्यादा होता है। डिफोरेस्ट्रेशन है, एनवायरमेंटली जो हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं वो हो रही हैं, एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजप्शन, इन सब की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है। नाउ fossil fuels क्या है, so source of energy that were formed from the remain of plants and animals that died millions of years ago and were buried deep under layer soil and rock or under the sea. अब ये क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, जो प्लांट्स या एनिमल्स थे जो मर गए थे और जो बहुत सालों से, मिलियन ऑफ ईयर से नीचे जब दबे हुए थे मिट्टी के या लेयर के या सोल के कहीं भी या सी के नीचे,
जब वेयर हीट एंड प्रेशर सोली टर्न, अब ये हीट और प्रेशर जब ये इतने सालों तक दबे हुए हैं तो सोयल या सी या जो भी है उसकी हीट की वजह से वो धीरे धीरे कोल में, पेट्रोलियम में, ऑयल में या नेचुरल गैसेस में चेंज हो रहे हैं और इनका हम इतनी जल्दी जल्दी यूज़ करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो ये सब पोल्यूशन हो रहा है। नाउ resilience, the capacity of withstand or recover from difficulties. Mitigations, the adaptation of steps to help slow down global warming and reduce the cause of climate change. तो अडोप्ट करना चीज़ों को कि किस तरह से हम इन सब को कम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को थोड़ा धीरे कर सकते हैं। सस्टेनेबल, समथिंग विच कैन बी मेंटेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कुछ टाइम के लिए मेंटेन करके रख सकें। सो वाई डज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट द क्लाइमेट, ये क्यों अफेक्ट कर रहा है? सो इन द अर्थ नेचुरल कार्बन cycle, carbon dioxide and the other gases are released gradually into the atmosphere, trap heat from the sun. This natural greenhouse effect warm earth enough to support life. अब क्या होता है, जो अर्थ की नेचुरल कार्बन साइकिल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी गैसेज होते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं और हीट को ट्रैप करते सन के, तो ये जो है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो अर्थ की लाइफ के लिए सपोर्ट करता है। हावेवर अब क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर हैव रिलीज्ड एनरोमस अमाउंट ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इन गैसेस को निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रही हैं इन जस्ट अ फ्यू सेंचुरीज, कुछ ही सालों में। दिस सडन इंक्रीज ट्रैप्स एक्स्ट्रा हीट, अब इसकी वजह से सन की ज़्यादा हीट यहाँ पर जो है ट्रैप हो जाती है, causing rapid global warming and disrupting the climate pattern that plants, animals and human societies have adapted to over thousands of years. अब इसकी वजह से ज़्यादा हीट, एक्स्ट्रा हीट जो है इंक्रीज़ हो रही है, हीट ट्रैप होगी तो हीट इंक्रीज़ होगी, अब इंक्रीज़ हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से आ रही है। जो हमारा क्लाइमेट है जिसके लिए जो है, जो प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन्होंने अडेप्ट किया है इतने सालों से इस क्लाइमेट को, इस वेदर को, वो अब चेंज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इन इंडिया राइजिंग टेम्परेचर आर परसिपिटेबल इन मैनी रीज़न, तो बहुत सारे रीज़न में जो है ये देखने को मिलता है। जैसे अर्ली इन 2025 फॉर इंस्टेंस द कंट्रीज एवरेज टेम्परेचर वॉज 1 to 3 डिग्री अबव नॉर्मल, तो 1 से 3 डिग्री तक नॉर्मल था ये स्टार्टिंग के 2025 में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द विंटर वॉज मच शॉर्टर एंड माइल्डर देन यूजल, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहले क्या ठंड ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है ये टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस हमें कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से जो ठंड है वो ज़्यादा नहीं थी, पहले के मुकाबले बहुत कम थी और टाइम भी कम था। दिस इफेक्ट नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसकी वजह से ये नहीं है कि कुछ कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम होगा, क्योंकि जितनी ठंड क्रॉप को चाहिए अगर उतनी नहीं मिलेगी तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, छोटे मोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल शोइंग हाउ अ वार्मर प्लेनेट विल प्रेजेंट अस विद इंक्रीजिंग चैलेंजेस। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से गर्म जो प्लेनेट होंगे हमारे लिए किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे हमारे चैलेंजेस को। Understanding the relationship between the causes of climate changes and disaster can help us to prepare better for these challenges. अब इनके बीच जो रिलेशनशिप है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या डिज़ास्टर की वजह से हमें बेटर चैलेंजेस को हेल्प कर रहा है, डिज़ास्टर के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि आगे अगर कोई चैलेंजेस इस तरह के आए तो हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। ये साथ में सपोर्ट करता है द नीड ऑफ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, हमें ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिल्डिंग करना है रिजिलेंस का एंड अडेप्ट करना है इन कम्युनिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडियाज़ अटेम्प्ट टू प्रोमोट मेजर्स ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशंस सच एज कटिंग डाउन ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सो मतलब ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, जो भी हमारे नेचर के लिए सही नहीं है, गलत है, उन सबको हमें चेंज करना पड़ेगा या हमें दूसरे ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा जो है हमारे नेचर के लिए सही है। प्लांट करना पड़ेगा ट्रू को, बूस्ट करना पड़ेगा न्यू जो रीन्यूएबल एनर्जी है, इम्प्रूव करना पड़ेगा एनर्जी एफिशिएंसी को, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एक्सेट्रा। बट these often clash with the desire for economic growth and increased consumption.
लेकिन कई बार इसमें क्लैश भी होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी हमें चाहिए और कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, तो इस वजह से थोड़े बहुत क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो इनके लिए जो है, अगर हमें अपने नेचर को सही रखना है, हमारे क्लाइमेट को सही रखना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट इज शेप्ड बाय इट्स ज्योग्राफिकल इंक्लूडिंग माउंटेन, डेजर्ट्स एंड प्लेटो। वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म, सीजन जो है ईयरली आता है, और क्लाइमेट रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग टर्म पैटर्न को। फैक्टर्स सच एज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, proximity to the sea एंड विंड एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन द क्लाइमेट। ये सभी क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है, मतलब इन सब से ही हमारा क्लाइमेट बनता है। मॉनसून्स आर विटल फॉर एग्रीकल्चर्स, इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप साइकिल एंड लिवलीहुड। Climates is connected with cultural traditions, festivals, agriculture and economic activities. Understanding the climate help prepare for natural disasters like flood and cyclones. So climate जो है help करता है जो है नेचुरल डिज़ास्टर से, जो है हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंजेस लीड्स टू एक्सट्रीम ऑफ वेदर और टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम हो जाएगा वेदर या टेम्परेचर का, एंड कैन हैव सेवरल कंसिक्वेंसेस ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। और बहुत सारे कंसिक्वेंसेस ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड दोनों को देखने पड़ेंगे, सहन करने पड़ेंगे, अगर हम इसमें अभी से भी सही से नहीं करते हैं। तो उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। नाउ मैच द क्लाइमेट फॉरेस्ट विद देयर इफेक्ट। लैटिट्यूड में क्या आएगा आपका, बी वाला पार्ट आएगा। सो क्रिएट डिफरेंट क्लाइमेट इन द नॉर्थ्स एंड साउथ्स। एल्टीट्यूड में क्या होगा, सी, कीप हायर प्लेसर कूलर। प्रोक्सिमिटी ऑफ द ओशन, मॉडरेट द टेम्परेचर। मॉनसून विंड्स क्या होती हैं, ब्रिंगिंग वेट एयर टू इंडियन ड्यूरिंग समर। नाउ answer the following question. What is the difference between weather and climate? So weather refers to day atmospheric condition like rain, sunshine, wind and temperature. Climate क्या है, is an average pattern of weather in a region over a long period, usually 30 years or more. तो उसे हम climate बोलते हैं। Why do places near the ocean have milder temperature than the places far away from it? So ocean act as a temperature moderator. Coastal areas experience cooler summers and warmer winters because water heats and cools slowly, reducing extreme temperature variation. What role do monsoon winds play in affecting climate change? So monsoon winds bring seasonal rainfall, which is essential for agriculture, rivers and life. In summer, moist winds from the ocean bring heavy rainfall, and in winter, dry winds from the land lead to cooler and drier weather. Why is Chennai warm or hot throughout the year while Leh is cold? So Chennai is near the equator and the sea, so it remain warm or hot most of the year. जबकि ले में क्या होता है, हिमालय में है, हाई एल्टीट्यूड में है, सी से बहुत दूर है, तो इसकी वजह से ये ठंडा रहता है पूरा साल। Now look at the map of India given at the end of this book. Identify the climate of these cities एंड इज़ अ प्लेस नियर द सी, इन द माउंटेन, और जहाँ भी है वो आपको बताना है। जैसे कि ले माउंटेन्स हैं, एल्पाइन क्लाइमेट है, हाई एल्टीट्यूड एंड स्नोई। चेन्नई कोस्टल है, ट्रॉपिकल, हॉट एंड ह्यूमिड, नियर सी एंड इक्वेटर। दिल्ली प्लेन है, सब ट्रॉपिकल है, हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। पणजी कोस्टल एरिया है, वेस्ट इंडिया, ट्रॉपिकल वेट, हैवी मॉनसून रेन्स। जयपुर डेजर्ट है, एरिड, वेरी हॉट समर होता है, ड्राई एंड वेरी लिटल रेनफॉल। सो ड्रॉ द मॉनसून साइकिल। मॉनसून साइकिल ड्रॉ करना है इन समर एंड विंटर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। लेबल वेयर द wind blow in summer and winter, show the direction of wind during the monsoon. So summer monsoon, June to September. Wind blow from the southwest from the Indian Ocean, bringing moisture and rain to India. The rain start in the southern tip and move northward. Winter monsoon October से February. Wind reverse and blow from land to sea, bringing dry weather and cool temperature. These winds bring some moisture to parts of east and south India. सो विंटर मानसून जो है अक्टूबर से फरवरी तक होता है। विंड रिवर्स होती हैं, ब्लो होती हैं। सो ये आपका पूरा विंटर मानसून का हो गया, ठीक है, यहाँ से। और ये जो है समर मानसून है, जो यहाँ से इधर जा रही होती है, ठीक है। ये समर जो आपको वहाँ पे मानसून साइकिल जो शो करना था, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। नाउ यू हैव टू मेक अ कलरफुल पोस्टर शोइंग फेस्टिवल इन इंडिया लिंक टू अ फार्मिंग एंड वेदर। बैसाखी, ओणम वगैरह है, उनकी पिक्चर्स भी आपको ऐड करनी है। सो बैसाखी जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है रबी क्रॉप का पंजाब में। ओणम
एंड ऑफ मॉनसून में होता है, केरला में पोंगल एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन, तमिलनाडु लोहड़ी विंटर हार्वेस्ट, नॉर्थ इंडिया छठ पूजा आफ्टर मॉनसून हार्वेस्ट, बिहार और यूपी में। सो आपको पोस्टर बनाना है तो इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं इमेज को, क्रॉप्स की, सेलिब्रेशन की, जैज डांसेस, ट्रेडिशनल फूड एसोसिएटेड विद दीज पोस्टर्स, जैसे कि ये जो भी फेस्टिवल है उनसे रिलेटेड, जैसे बैसाखी, ओणम हो गया, लोहड़ी, पोंगल, ये ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इमेजिन यू आर द फार्मर इन इंडिया, राइट अ शॉर्ट एंट्री about how you would prepare for rainy season. So 10th June, dear diary, the sky look dry, darker each day, the monsoon is near. I have cleaned the canals in my field so the water can flow smoothly. I have sown paddy seeds and stored fertilizer safely. The old well has been prepared and the cow shed roof fixed. I am praying for timely rain. Without it, our crops won't survive. If the rains are good, we will celebrate Onam with joy. Ramu, a farmer from Kerala. तो आप इस तरह से कोई भी अपना एक बना सकते हैं। Identify the natural disaster. Write a short essay that includes and causes effects, suggest action that individual communities should take या फिर गवर्नमेंट should take. So जैसे फ्लड के लिए टाइटल अंडरस्टैंडिंग फ्लड्स, causes, impact and solution. So flood occur when water overflows in dry states या lands, often due to heavy rainfall, poor drainage or river overflowing. States like Bihar, Assam and Kerala often suffer during monsoon. Causes: excess rainfall, poor city drainage, deforestation and encroachment on waterways. Impacts: loss of lives and home, damage to crops, roads and bridges and waterborne disease, and migration of rural people. Solution क्या है? इंडिविजुअल अवॉइड डंपिंग वेस्ट इन ड्रेन्स, प्लांट ट्रीज. कम्युनिटीज़ में क्या क्या हो सकता है? बिल्ड लोकल फ्लड शेल्टर्स, कीप वाटरवेज क्लियर. गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, बिल्ड डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, ट्रेन डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स लाइक NDRF. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.